ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਦਰਾਲੀ ਪਿੰਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਵੀਰ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ 3-4 ਦਿਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਹੁਣ ਬਸ ਉਹ ਤਾਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ 26 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਗੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਏ, ਟੀਨਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਧੀਆ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਦੀਸ਼ਵਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਦੁਗਾਲ ਤੋਂ। ਜੀ, ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਾਤੜਾ ਤੋਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ? ਸਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਸਭ। ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਰਦ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਿੰਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਕੋਊ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸੋਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਹੋ ਗਏ ਜੀ 22-23 ਦਿਨ ਜੀ। ਨਿਰੰਤਰ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈ ਦੀ 7 ਕੁ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਰੋਜ਼ਮਰੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੀ ਐਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਬਈ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਵੱਸਦਾਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ ਜੋ ਇੰਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं हिंदी में बात करूंगा ताकि सारे देश के, दुनिया के लोग समझ सके कि मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ। मेरा नाम स्वामी हर्षानंद है, संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट। 42 साल से बच्चों में, बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक को आकार देना, और ये जो किसान आंदोलन है ये प्रकृति चला रही है। आज मैं 3 चीज़ें, जो बाकी चीज़ें तो आप सब सुन रहे हैं, 3 चीज़ें मैं आज फार्मूले के रूप में देना चाहता हूँ। देखिए, हमारा उद्देश्य है भारत को विश्व के मस्तक पर सुशोभित करना। इस दिशा में किसानों ने सिद्ध कर दिया है कि उनका शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और सेवा सारी दुनिया देख रही है। अब जिम्मेदारी है उस प्राइवेट कंपनी की जिसे मैंने नाग नाम दिया है, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी। नरेंद्र इस समय उसके शरीर के अंदर एक योगी नहीं है, उसके अंदर मांबा सांप प्रवेश कर चुका है। मांबा, दक्षिण अफ्रीका वाला। ओके, वो इस तरह से स्प्रे कर रहा है जहर कि हमारी आंखें अंधी हो जाती है। वो क्या कहना चाहता है, ये खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान प्रायोजित हैं और इनको लोग भरमा रहे हैं, भड़का रहे हैं, राजनीतिक दल इनको प्रश्रय दे रहे हैं। ये सब गलत बातें हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दूसरे हैं मिस्टर अमित शाह, उसके अंदर कोबरा आ गया है। क्या कर रहा है वो अमित? वहम का व्यापारी था वो। क्या कर रहा है? बड़े बड़े सपने दिखा रहा है कि मैं पारसमणि हूँ, मैं छूऊंगा तो सोना बन जाएगा, और हमारा जेब खाली करता जा रहा है। और इन दोनों ने मिलके एक नए बनिए को पकड़ा जिसका नाम है गौतम अडानी। वो वाइपर सांप बन गया है, वो डस रहा है, बिना रजिस्ट्री के लोगों के खाते में ज़मीन चढ़ती जा रही है। कितनी पीड़ा की बात, उनके लोगों के, किसानों के नहीं, किसानों की ज़मीन गौतम अडानी के लोगों के नाम चढ़ती जा रही बिना रजिस्ट्री के। ये ऑनलाइन रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। 10 साल बाद मेरे देश के बच्चे ये सब सुनेंगे कि एक संत ऐसा भी आया था उस आंदोलन में जिसने 10 साल पहले ही सब बता दिया था। ध्यान से सुनिएगा, ये लड़ाई सिर्फ ईगो की है, सिर्फ ईगो की लड़ाई है। ये जो जत्थेदार बंदियां हैं क्या कह रही हैं, हम बिल खत्म कराएंगे, वो कह रहे हैं हम बिल वापस नहीं लेंगे। तो फिर समापन कैसे होगा इस झगड़े का? वो सूत्र आज मैं आपके माध्यम से देश को देना चाहता हूँ। मेरा सपना रहा भारत की धरती पे आने वाला हर नवजात शिशु सुप्त विवेकानंद को जगाए, बिल गेट्स बने, सुंदर पिचाई बने, दुनिया को खूबसूरत बनाए। उसके लिए सूत्र दे रहा हूँ। अभी तक मैंने किसी को नहीं दिया है। पहला सूत्र आपके मीडिया पे जा रहा है। पहला सूत्र, जितने स्पिरिचुअल लीडर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, इन सब के जो हेड हैं पूरे हिंदुस्तान के, वो मिले 5, और 5 कृषि वैज्ञानिक। ये 10 लोग डेलीगेशन लेके प्रधानमंत्री के पास जाएं और उनसे कहें कि नरेंद्र भाई आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ये देश एक सक्षम राष्ट्र के रूप में तब्दील हो? तो फिर हमें किसानों के साथ इस तरह से संघर्ष जारी नहीं रखना चाहिए। हम इस संघर्ष को ख़त्म करें। आपका ईगो आड़े आ रहा है ना कि आपने 303 आपको बहुमत दिया तो इस देश की जनता ने है ना। किसने दिया है वोट? किसने दिया आपको? जनता ने दिया है ना। जनता की आवाज़ है ये, भारत की आत्मा की आवाज़ है। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो ये 10 लोग जो कृषि वैज्ञानिक होंगे और 5 स्पिरिचुअल लीडर होंगे, ये शांति से नरेंद्र भाई को सुनेंगे और फिर बोलेंगे कि देखो ऐसा करते हैं, 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम किसानों को आगे चलाते हैं। लेकिन आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करना ही होगा, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं,
किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, बिना यह जाने उसकी उत्पादन लागत भी निकली या नहीं। अरे दुनिया ड्रोन पे उड़ रही है, हम बैलगाड़ी के बैरिंग पे समाज को लेके चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारत एक सक्षम राष्ट्र के रूप में तब्दील हो जाएगा। ये संभव नहीं है। तो ये पंत प्रधान को समझाना होगा, पहला फेज 1, अब फेज 2। फेज 2 उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उनकी बात भी नहीं मानी जाती है तो फिर मैं देश की जनता से प्रार्थना करता हूँ, इस आंदोलन को वो जो शेप देना चाह रहे हैं कि हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का चुनिंदा लोगों का, देश का नहीं है, और नकली संगठन बना के उनको असली किसान बना के प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, फिर मैं देश की जनता से अपील करता हूँ और जत्थेबंदियों से भी अपील करता हूँ, ये बड़ा काम करने के लिए कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, एक कैमरे की आंख पर बोल रहा हूँ। जो लोग 10 साल आंदोलन कर रहे हैं, इस पीड़ा को जानते हैं, उन्हें मंच पे मौका दिया जाना चाहिए। गैर जिम्मेदार लोग कुछ भी बोलेंगे तो ये जो लेंस है ना कांच का, और जब ये कट पेस्ट करता है तो मैं कह रहा हूँ कि आज मैं अजमेर जाऊँगा और ध्वनि सुनाई देती है आज मैं मर गया, सारी ध्वनि बदल जाती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जितने किसान 10 सालों से जो संघ चला रहे हैं जत्थे, वो लोग मंच पे आए, क्योंकि वो समझते हैं कि एक एक शब्द की ताकत क्या होती है। एक शब्द गलत होने पे सारा खेल बिगड़ जाता है। तो ये जिम्मेदारी की बात है। तीसरी बात, शासन की शक्ति अथाह होती है, उससे आप लड़ नहीं सकते। फोर्स उनके पास, पैसा उनके पास, व्यवस्था उनके पास, हमें क्या करना है? प्रश्न ये है। वो यहाँ खड़ी है भारत सरकार, मान लो मैं तो उसे नाग कंपनी नाम दे चुका हूँ, प्राइवेट कंपनी, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी, वो यहाँ खड़ी है। अब अगर इसको कमजोर करना, इससे बड़ी रेखा पे आपको जाके खड़ा होना होगा, और वो तरीका क्या है वो बता रहा हूँ। ये जो लेंस है मोबाइल का, इस लेंस का बेहतर इस्तेमाल करिए, डिजिटल तकनीक का। समझ रहे हैं आप? आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहां खड़ा हूं? हरियाणा की उस भूमि पर खड़ा हूं जहां धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक धर्म युद्ध हुआ था, धर्म और अधर्म के बीच। उस समय भगवान कृष्ण आए थे। आज कृष्ण नए स्वरूप में आएगा, बंसी बजाता हुआ नहीं आएगा, तीर कमान लेके नहीं आएगा, भाले बर्छे लेके नहीं आएगा। अब कृष्ण आएगा मोबाइल के जरिए। इस मोबाइल का बेहतर इस्तेमाल करिए। मैं गारंटी करता हूं, मैं सारे सिस्टम को गहराई से समझता हूं। एक एक मोबाइल से 10-10 स्प्रे होंगी इन्फॉर्मेशन, वो 10-10 100 बनेंगी, 100 हज़ार बनेंगी, 1000 लाख बनेंगे, लाख करोड़ बनेंगे। जिस दिन 5 करोड़ व्यूअर्स आ गया आपका, नरेंद्र मोदी खुद उसको पढ़ेगा। 5 करोड़ व्यूअर्स के बाद पढ़ता है वो, क्योंकि उसका IT सेल में 12,000 लोग काम कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री कार्यालय को संविधान ने बहुत ताकत दी है, हमें पता नहीं है। ये प्रधानमंत्री की ताकत का प्रतिफल देख रहे हो आप? बाकी तो सब डमरू पे नाचने वाले बंदर हैं। उसने 303, वो कहता मेरे कहने पे जीते हैं लोग। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, ये जंग सही ट्रैक पर लाइए। और सही तरीका क्या हो सकता है, ये सारे फेसेस को मैंने सब रिकॉर्ड करवा दिया है, बार बार ध्यान से सुनिए। अगर मोबाइल का संतुलित उपयोग हुआ और दुनिया के प्लेटफॉर्म पे आपने सिद्ध कर दिया कि किसान क्यों लड़ रहा है, ये सिद्ध करना है आपको। क्योंकि उनका नैरेटिव, देखिए, गोदी मीडिया प्राणवायु सरकार से लेता है विज्ञापन के जरिए, वो आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। ये बात साफ साफ कह रहा हूँ। हमें प्रैक्टिकल धरती पे आके युद्ध लड़ना होगा। धर्म आपके साथ है, विजय आपकी होगी, लेकिन आप परेशान तो हो रहे हो ना। कितने लोग मर गए, हमारे एक संत ने आत्महत्या कर ली, और कितना यहाँ पे जो दृश्य उभर रहा है, कितना दुखद दृश्य। लोग अपना पेट काट के लोगों को खाना खिला रहे हैं, कितनी पीड़ा की बात। अगर सरकार होती 2 घंटे में फैसला आ जाता। ये सरकार नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी को कमज़ोर करने के लिए आपको बड़ा नैरेटिव चलाना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गई? ये फेसेस 10 फेसेस मैंने तैयार किए हैं। अभी पहला रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, आगे कोई और मिलेगा तो 2 नए उसको दूंगा। ये सारे फेसेस अगर 10 आपने इम्प्लीमेंट कर दिए, मैं गारंटी करता हूँ ये कंपनी घुटनों के बल आ जाएगी। दुनिया में सिर्फ 2 जातियाँ हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के विकास हेतु बनाए गए थे, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। इन राजनीतिक दलों ने इस्तेमाल किया उनका। आप भी उनके साथ खड़े हो रहे हो। नहीं जी, मैं पूछ रहा जी। देखिए, आप समझिएगा, ये किसान भारत की आत्मा है, और जब आत्मा कराहेगी तो ये शरीर जो है ना अस्त व्यस्त हो जाएगा। आप समझिएगा, ये जो मानव शरीर है ना, ये प्रकृति का चलता फिरता देवालय है। ये 5 एलिमेंट को बैलेंस करके चल रहा है। प्रकृति ने अपनी सत्ता को पंचमहाभूत से प्रकट किया है। जल 72%, 28% पृथ्वी, आकाश रिक्त,
वायु अदृश्य, अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। सूर्य की पहली और अंतिम किरणों को मैंने शरीर में धारण कर रखा है। ये दुनिया को प्रकाशित करता है और ये जितने पंथ हैं इन सब का उद्देश्य एक अच्छे मानव को आकार देना है, लड़ाई झगड़ा नहीं। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है। आँख क्या करती है? देखती है। कान क्या करता है? सुनता है। ऑडियो वीडियो कनेक्ट कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन को कौन कंट्रोल करता? हमारा चित्त। आप सिख बन गए, मैं हिंदू बन गया, किसने बनाया? सामाजिक व्यवस्था ने। प्रकृति ने तो इंसान भेजा था ना, कच्ची मिट्टी। उस कच्ची मिट्टी को किसी ने हिंदू बनाया, किसी ने मुस्लिम बनाया, किसी ने सिख बनाया, किसी ने ईसाई बनाया, किसी ने इंसान बनाया, किसी ने इंसान बनाया। बताइए, इंसान बनाया किसी ने? किसी ने इंसान नहीं बनाया। दुनिया को इंसानियत की जरूरत है साहब। जिस दिन इस धरती पर इंसान पैदा होगा, गारंटी करता हूं हर बच्चा सुप्त विवेकानंद को जगाएगा, बिल गेट्स बनेगा, सुंदर पिचाई बनेगा और दुनिया को खुशहाल बनाएगा। ये अंतिम लक्ष्य है मानव जीवन का, खुशहाल जीवन, हैप्पीनेस वर्ल्ड। हम तो उसी पे काम कर रहे हैं। हमारी पीड़ा, मैं किसी नरेंद्र को गाली देने नहीं आया हूँ, उसको जगाने आया हूँ। मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। अगर वो जैसे ही अहंकार को मिटाएगा तो सेवा प्रकट होगी, और सेवा प्रकट होगी तो आत्मा से जुड़ेगा, और आत्मा से जुड़ेगा तो धरती पुत्र के तो पैरों में पड़ेगा कि आप तो मेरे मालिक हो, मेरा अन्नदाता हो, आपसे मेरी थोड़ी लड़ाई है। बस उसके अहंकार को विलीन करने के लिए, अंधेरे को प्रकाश में बदलने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। मैं बहुत दिल दुखा करके बोल रहा हूँ। मेरा धर्म किसी का दिल दुखाना नहीं है। मैं योग का विद्यार्थी हूँ। योग जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो मैं अपने आप को कमज़ोर कर रहा हूँ। समझिए मेरी पीड़ा, है ना? तो मैं मेरी पीड़ा नरेंद्र भाई आपको भी कह रहा हूँ, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। मैं सब में एक ही नूर देखता हूँ, जो गुरु महाराज ने कहा, एक नूर के सब बंदे, एक ओंकार। हाँ जी, तो वो चीज़ अब दुनिया में लाने का समय आ गया है। हमें विश्व का गुरु बनना है। 50% काम मेरे देश की आत्मा ने, किसानों ने कर दिया है। इतने दिनों से आंदोलन में, इतने ठिठुरते हुए, बारिश में सारी पीड़ाएं भोगकर, कहीं किसी के चेहरे पे आपने मायूसी देखी? क्या सिद्ध करता है ये? इतना प्यार, इतनी सेवा। 50% काम तो इन्होंने कर दिया है। अब तो नरेंद्र भाई की जिम्मेदारी है कि वो कदम आगे बढ़ा के 50% वो करें, बड़ा दिल करके कि देश की जनता ने मुझे पंतप्रधान बनाया था, मैं किसानों को समृद्ध बनाने के लिए अपने काले कानून वापस लेता हूं और ये कानून जो मेरे देश के लोग चाहते हैं वो देता हूं, तो उनका कद भी बहुत बड़ा हो जाएगा।